Okay जी, so alternating current में so far we are done with the important equations. IRMS is I naught over under root 2. VRMS is V naught over under root 2. And then equation X is X naught sin omega t. अच्छा, ये जो इक्वेशन है x is x naught, x can be I or x can be v. Similarly, this x naught can be I naught or it can be v naught, and this this omega can be 2 pi over t or it can be 2 pi f, and this t is the value of time upon which we have to find this current or voltage. ठीक है, so we are so far done with these things. Now today we have to look for the power expressions. अच्छा बेटा, power expression mean के whenever it is DC or AC source, a battery is connected with resistor, of course some power is going to be dissipated. For example, if we look for the DC circuits, this is a resistor, ammeter, and let's say this is the cell, this is resistor, this cell is having EMF E or V, this is ammeter, and we can connect a voltmeter across this as well. So we know So we know when this current is going to pass through this resistor, this current is going to produce बैग नीचे रखने हैं, ये कहा उन्होंने. अच्छा, so देखो बेटा, this is DC circuit. How do you know this is DC circuit? Huh? Okay, one more thing, DC cell. Cell is DC, right? And current is flowing in one direction. When it will pass through this resistor, of course some heat is going to be dissipated. ऐसे ही है जिसको हम कहेंगे power dissipation, कि भाई यहाँ पे कुछ power dissipate हो रही है. Dissipate का मतलब ये है कि electrical power is going to be converted into non-electrical power. Let's say heat हमें इस resistor से मिल रही है. If I ask you to find the power dissipation expression, so you will say it is IV, P is IV, right? Or you can say it is I naught V naught. Why? Because DC current or DC voltage, they always stay the same. So you can write I naught V naught, or you can write IV, it's the same thing, right? Similarly, the next is I square R or I naught square R. The next is V square by R or V naught square by R. So these are the expressions. अच्छा, ये O levels या AS वाले expression है. So the point to note here is, since it's DC, it's direct current, then your current value or peak value or same, voltage value or peak value of the voltage, they are the same. Okay, that's what we are already done with. Up, let's move to the next thing and let's look for the AC circuits. AC circuit mean that we are going to use the resistor and of course ammeter, and then we are going to use a AC battery over there. So let's say this is AC source now, AC voltage source, and its peak value is V naught and then RMS value is VRMS. Achha, ab what's going to happen? The current is going to change its direction. First it will be moving that way, and then next moment it will be moving this way. Like the current is going to change its direction of flow. That's why it is AC. When the current will be flowing through this resistor, then power will be dissipating as well. Of course, power has to be dissipated because
DC is also current, AC is also current. So whenever current will flow through resistor, it will produce heat energy, right? So now we have to look for the same expressions for three expressions for power that we have developed for DC. So AC के लिए if we look for the three expressions, so we will say in AC it will be the mean power. It will be the mean power. So mean word will be used over there. So whenever they say mean power, so it means this is average power. And average mean this is related to AC circuits. If they only say find power, तो it means ये DC है. If they say find mean power or average power, it means this is linked to AC circuits. तो फिर इसमें AC current और AC voltage जो है वो होंगे. Okay, now let's look upon developing the three equations for mean power. So बेटा जब mean power हम लेते हैं तो we use RMS current and RMS voltage. This is the only difference, like otherwise things will be same. IV is IV. So this is IRMS and VRMS. Okay, the next thing is, next formula क्या होगा इसका? I square R को हम कैसे लिख सकते हैं? I square R को IRMS square into R. And next thing, the last formula V square by R को हम कैसे लिख सकते हैं? VRMS square by R. तो देखो there is a great resemblance between these two formulas. This is DC and this is AC. ठीक है? DC cell and then AC battery. Power dissipation we have calculated across the resistor. The resistor is same in both the cases and we have to find the power expression for the AC as well. So you can see that the basic things I and V and R are same. The only thing that is different, in DC we use peak values or only the current and voltage value, but in AC we always use RMS. तो AC में दो चीज़ें हैं, जब पावर का कहेंगे तो आपने मीन पावर का वो कहेंगे फाइंड मीन पावर, एंड मीन पावर कैसे निकालेंगे? IRMS VRMS, मतलब जहाँ भी करंट और वोल्टेज यूज़ करेंगे you'd be using RMS value, you'll not be using peak value. ठीक है? Is this thing clear? Okay, let's move on to next and final thing, which is relation between AC and DC power. AC and DC power dissipations. Okay, this is important now. We know that if we talk about AC power, that will be the mean power. So this symbol is for mean or average. So average power is IRMS VRMS from here. IRMS VRMS. Then we also know the relation. We also know that what this IRMS and VRMS are equal to. So we can say IRMS is equal to I naught over under root 2. एंड VRMS किसके इक्वल होता है? ये कल हमने किया था ना, और ये यहाँ पे आज जो ये चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई कि IRMS का फॉर्मूला लिखा हुआ है, VRMS का फॉर्मूला लिखा हुआ है. सो VRMS किसके इक्वल होगा? V नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2. अच्छा, हम कर क्या रहे हैं? हमने ये स्टार्ट किया था जस्ट पावर एक्सप्रेशंस कि भाई DC और AC सर्किट्स के अंदर जब करंट फ्लो करता है तो उसमें पावर डेसिपेशन होती है. पावर डेसिपेशन का मतलब क्या है कि यू गेट सम यूजफुल एनर्जी. इट कैन बी लाइट एनर्जी, इट कैन बी हीट एनर्जी. जिस तरह अभी ये LED लाइट्स ऑन है तो दीज लाइट्स आर डूइंग पावर डेसिपेशन. कैसे? वी आर प्रोवाइडिंग दैम विद इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू करंट. Current is flowing through them and we are providing electrical energy, and then what those LEDs are doing, they are converting electrical energy into non-electrical energy such as light and heat. So we say that these LEDs are doing power dissipation. Power dissipation का मतलब है power conversion. हम लोग भी यही कर रहे होते हैं, अभी मैं भी यही कर रहा हूँ. at the moment I am doing power dissipation, कि मेरे बॉडी में जो केमिकल एनर्जी है I am converting that into some other energy. ठीक है? तो DC और AC दोनों में हमने एक्सप्रेशन लिखे. दे आर वेरी इजी. DC के लिए तो वो आपके O लेवल्स और AS वाले हैं, IV और I स्क्वायर R और V स्क्वायर बाय R. बट वन थिंग टू नोट ओवर देयर,
that the current is actually, whenever we say current, it means the peak current, क्योंकि DC में तो वो एक ही करंट रहता है, वो तो चेंज ही नहीं होता, तो इसलिए we mean the peak current actually, right? Peak current और actual current both are same. Peak voltage and actual voltage both are same. Why? Because DC stays same. While in AC, as the current value changes, voltage value also changes between 0 and maximum, so we have to use the term mean power. ठीक है, मीन पावर, एवरेज. क्यों? क्योंकि जब करंट कम है तो पावर भी कम है, जब करंट बढ़ रहा है तो पावर भी बढ़ रही है, जब करंट मैक्सिमम हो गया तो पावर भी मैक्सिमम हो गई. ऐसे ही है ना. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज मीन पावर, कि भाई एवरेज पावर कितनी डेसिपेट हुई है. तो उसके लिए हमने सिर्फ ये किया है कि यहाँ पे RMS जहाँ जहाँ आई या V आएगा फॉर्मूला में, वहाँ हम RMS यूज करेंगे. नेक्स्ट थिंग, अब हम कहेंगे यार ये दोनों आपस में लिंक्ड कैसे हैं, हमारे लिए कि कौन सी पावर बेहतर है, क्या DC पावर बेहतर है या AC बेहतर है. लेट्स लुक अपॉन दैट. तो हमने स्टार्ट किया AC पावर से, मीन पावर इज IRMS VRMS. फिर हमने कहा अच्छा IRMS VRMS को रिप्लेस करो इन वैल्यूज से. सो ये आप यहाँ रिप्लेस कर दो, ये आप इधर रिप्लेस कर दो. तो इनकी जब रिप्लेसमेंट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, मीन पावर विल बी I0 ओवर स्क्वायर रूट 2 इसकी जगह, इनटू इसकी जगह V0 ओवर स्क्वायर रूट 2. बिकॉज सम टाइम AC सर्किट्स के अंदर वो आपको पीक वैल्यूज़ दे देंगे और वहाँ से कहेंगे अब निकालो आप. तो अगर वो पीक वैल्यू देंगे तो एक तो हम रिवर्स बैक करके RMS निकाल के यहाँ पुट करके मल्टीप्लाई करके भी मीन पावर निकाल सकते हैं. लेकिन अगर इसको हम अवॉइड करना चाहें कि यार नहीं ये नहीं करना, पीक को ही यूज़ करना है, तो उसका भी तरीका है. तो ये उसका तरीका है कि जो मीन पावर होएगी दैट विल बी इन दोनों, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, I0 V0 और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2. तो I0 V0 ओवर 2, ये 2 रह जाएगा ना, क्योंकि ये 4 होगा तो 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा. अब देखो इसका मतलब ये है कि हम ये कंक्लूड करेंगे कि जो मीन पावर है दैट विल बी इक्वल टू I0 V0 ओवर 2. वन थिंग, अब ये I0 V0 क्या चीज़ है, व्हाट इज दिस I0 V0? इफ यू लुक हियर, व्हाट इज I0 V0? दिस इज द DC पावर. DC पावर है ना ये I0 V0. सो फाइनली वी कैन से कि जो मीन पावर है दैट इज इक्वल टू पावर डेसिपेटेड बाय DC सर्किट डिवाइडेड बाय 2. तो टॉपिक क्या था, रिलेशन बिटवीन AC एंड DC पावर डेसिपेशंस. तो ये हमने देखो दोनों का रिलेशन बना लिया. ये जो मीन है, अगर मैं इसको ये ना लिखूं तो मुझे क्या लिखना चाहिए फिर AC, क्योंकि तो AC की पावर, मीन तो AC सर्किट्स में होती है ना. तो दैट्स हाउ दीज टू आर लिंक्ड विद ईच अदर. और यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि पावर डेसिपेशन इन DC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पावर डेसिपेटेड इन AC. तो फिर विच वन इज बेटर टू यूज? DC इज बेटर टू यूज. क्यों? क्योंकि DC पावर इज 2 टाइम्स AC पावर. अगर आपको सेम वोल्टेज, सेम करंट हो, सेम बैटरी हो, एक DC हो एक AC हो, तो जो DC है वो आपको डबल पावर देगी. इसीलिए एक इसकी चीज़ है कि अगर कहीं पे जिन कंट्रीज़ में DC पावर यूज़ होती है, हमारे यहाँ तो AC यूज़ होती है ना, तो AC हम कितने यूज़ करते हैं, 220 वोल्ट. तो जो लोग DC यूज़ करते हैं वो 110 यूज़ करते हैं. वहाँ पे 110 यूज़ होता है. क्यों 110 यूज़ होता है? क्योंकि वहाँ पावर, DC से पावर डबल मिल जानी है आपको. तो दैट्स वाई आपको वोल्टेज हाफ यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि इफ़ यू वांट सेम पावर तो आपको वोल्टेज हाफ यूज़ करने पड़ेंगे, उससे करंट भी कम हो जाएगा. लेकिन DC में क्या होता है, चूंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, इट ऑलवेज रिमेन द सेम, कभी वो चेंज नहीं होती. दैट्स वाई 110 वोल्ट विल बी इनफ फॉर अस. लेकिन AC में क्या होता है, वोल्टेज चेंज हो रहे होते हैं, मैक्सिमम फिर डिक्रीज हो रहे होते हैं. दैट्स वाई वी नीड हाई वोल्टेज ओवर देयर टू प्रोड्यूस द सेम पावर, बिकॉज इट्स वैल्यू फ्लक्चुएट बिटवीन 0 एंड मैक्सिमम. हमारी डिवाइसेस में वो कन्वर्ट नहीं कर रहा था DC से DC. किस में? सारी डिवाइसेस में किसी में भी नहीं हो रहा होता. ये जो पंखा है वगैरह होते हैं. हाँ, जो पंखे हैं अब जो आ रहे हैं DC अगर आ रहे हैं, जिस तरह ये जो है इसको भी हम इन्वर्टर कहते हैं. इन्वर्टर, DC इन्वर्टर सुना होगा आपने वर्ड. तो DC इन्वर्टर मीन के उसके अंदर पहले जब करंट जाता है तो उसके अंदर उसका मैकेनिज्म है जो उसको DC में कन्वर्ट करके देता है. इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो है ये इलेक्ट्रिकली बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं. दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो AC को लेके फिर DC में उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं. लेकिन जो बाकी हम एवरीडे में यूज़ कर रहे हैं सब AC है, DC तो नहीं है. एवरीथिंग इज़ AC. तो जिस तरह हल्के की मिसाल है
पंखा जो नॉर्मल पंखा है वो तो एसी वाला है ना, वो डीसी उसकी पोलैरिटी चेंज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बार-बार होती नहीं, वो उसके अंदर उसका मैकेनिज्म मोटर का ऐसा होता है कि उससे वो डायरेक्शन एक ही तरफ रहती है उसकी। हाँ नहीं, वो एक ही तरफ, वो उसकी जो कॉइल है ना, कॉइल और मैग्नेट की पोजीशन ऐसी होती है कि वो एक ही तरफ मूव करता है। वो एसी मोटर होती है, डीसी मोटर नहीं होती है। ये जो फैंस ये सारे हैं ये एसी मोटर है। इसी तरह लेट्स से जो जूसर मशीन, ग्राइंडर मशीन, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर, ये सब है, ये एसी होता है। इनकी मोटर्स दो होती हैं, एसी मोटर अलग होती है, डीसी मोटर अलग होती है। एसी मोटर एसी पे चलती है, डीसी मोटर डीसी पे चलती है। ठीक है, डीसी मोटर किधर होती है? ये जो ड्रोन्स वगैरह होते हैं, ये जो कार्स वगैरह होती हैं, या टॉय कार्स या रिमोट कंट्रोल वाली कार्स, इन सब के अंदर क्या होता है? डीसी मोटर होती है, क्योंकि ये वायरलेस डिवाइसेस होते हैं। लेकिन जो वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं, जिस तरह मैंने पहले एग्जांपल्स बताई, हेयर ड्रायर या वॉशिंग मशीन, ये सब एसी मोटर्स इसके अंदर होती हैं। ठीक है, ओके, सो दिस इज़ डन पावर का। ये इस पावर के क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं। ठीक है, सो आपने सिर्फ क्या देखना है, ये डीसी वाला आपको ऑलरेडी पता है, एसी वाले आपने फार्मूला लिख लिए। कोई इन दोनों में कोई खास डिफरेंस है? दोनों फार्मूलाज में नहीं है ना। सिर्फ क्या डिफरेंस है, इधर आई नॉट वी नॉट है, इधर आर एम एस, बस उनके साथ आर एम एस वैल्यूज आ जाएंगी, दैट्स इट। और थर्ड हमने क्या किया, हमने एसी और डीसी दोनों को जो है वो इक्वेट किया, और उसके बाद हमारे पास ये पता लगा कि अच्छा, अगर आपने एसी पावर निकालनी है और आरएमएस यूज़ करने हैं तो आप यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। अगर उसने आपको पीक वोल्टेज और पीक करंट दे दिया है, फिर कहता है कि मीन पावर निकालो, तो देन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला, पीक करंट इंटू पीक वोल्टेज डिवाइड बाई 2। लेकिन अगर आरएमएस देता है तो फिर आपने आरएमएस में खाली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड यू विल गेट द मीन पावर। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? Okay, so let's look upon the next topic, which is rectification. आज ये सारा कर लेते हैं ना, फिर मैं इसकी वर्कशीट शेयर कर लेता हूँ, आप वीकेंड पे थोड़ा ट्राई करेंगे और फिर मंडे को विल गेट बैक टू क्वेश्चंस फॉर दिस टॉपिक। अच्छा, रेक्टिफिकेशन क्या होता है बेटा? रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। ठीक है, लेट्स से आपने अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करना है, तो बैटरी ऑपरेटेड डिवाइसेस तो डीसी पे चार्ज होते हैं, तो हमारे पास तो एसी होता है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? हम चार्जर यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन चार्जर। तो मोबाइल फ़ोन चार्जर के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक उसके अंदर ट्रांसफार्मर होता है जो वोल्टेज को कम करता है, और दूसरा उसके अंदर रेक्टिफायर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम कहें कि भाई ये आपका फ़ोन है और यहाँ पे हमने उसको चार्ज करना है, ये एसी मेन्स है, प्लग है, ठीक है, तो ये जो इसकी यूजुअली इसकी जो बैटरी होती है वो लेट्स से 9 वोल्ट डीसी इसको चाहिए होते हैं, लेकिन आपके पास जो एसी आ रहे होते हैं दैट इज़ 220 वोल्ट एसी। ठीक है, प्लग के अंदर ये जो प्लग हैं इनके अंदर क्या है? 220 वोल्ट एसी हैं। मोबाइल फ़ोन को 9 वोल्ट डीसी चाहिए, तो आप क्या यूज़ करते हैं? आप बीच में एक चार्जर यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो आप चार्जर यूज़ करते हैं और फिर इसको इधर प्लग करते हैं, तो ये जो चार्जर है इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, 2 थिंग्स आर देयर। पहली चीज़ जो इसके अंदर होती है दैट इज़ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वो क्या करता है? वो आपके 220 वोल्ट को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, क्योंकि इसको तो 9 चाहिए, 220 तो नहीं चाहिए। दूसरा इसके अंदर जो दूसरी चीज़ होती है दैट इज़ डायोड। इसके अंदर डायोड होते हैं जिसको रेक्टिफायर कहते हैं, रेक्टिफायर। अच्छा, अब ये जो डायोड या रेक्टिफायर होता है इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, जो हमने पढ़ना है। तो अभी हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो ये वाला होगा, डायोड या रेक्टिफायर, कि ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हमने देखना है। और ये लैपटॉप के अंदर या फ़ोन के अंदर या टैब या जो भी चार्जिंग डिवाइसेस हैं सब के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू कि रेक्टिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एसी इनटू डीसी, राइट। अच्छा, अब रेक्टिफिकेशन की टाइप्स कितनी होती हैं? तो देर आर 2 टाइप्स। वन इज हाफ वेव रेक्टिफिकेशन and the other one is full wave rectification.
हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव जो है वो बिल्कुल लेट्स से कि अर्ली डेज में जब रेक्टिफिकेशन शुरू हुई तो हाफ वेव हुई। अब देखो इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि हाफ ऑफ द वेव इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड फ्रॉम AC इनटू DC। मतलब 100% AC है तो 50% DC आउटपुट मिलेगी, तो 50% तो वेस्ट हो जाएगी। तो इसमें हमारी 50% एनर्जी वेस्ट हो रही होती है, हम आधी वेव को DC में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। और फुल वेव रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम पूरी वेव को, फुल AC वेव इज़ गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू DC। तो दैट्स वाई ये जो है मोर एफिशिएंट है, इसलिए हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन ही यूज़ करते हैं। बट मतलब जितने हमारे डिवाइसेस हैं सब में फुल वेव रेक्टिफिकेशन होती है चार्जर्स के अंदर। लेकिन ये जाहिर सी बात है, चूँकि टॉपिक का बिल्कुल स्टार्ट होता है, तो दैट्स वाई हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन भी पहले करते हैं। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन इज़ वेरी सिंपल, और ये आई होप शायद आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी ये टॉपिक पढ़ा हो। रेक्टिफिकेशन पढ़ा है, डायोड्स वगैरह? नहीं, वो नहीं। ओके, लेट मी टेल यू हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा बेटा, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन के सिंपल मीनिंग क्या होंगे? सिंपल मीनिंग ये होंगे कि अगर आपके पास ये एक AC इनपुट है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह या फिर इस तरह कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास DC आउटपुट होएगी। इन दोनों में से एक हो सकती है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है, तो इसको हाफ वेव कहेंगे। अब ये कैसे DC है? अगर सिर्फ बेटा पॉजिटिव होएगा तो वो एक ही तरफ जा रहा है तो वो DC है, ठीक है, चाहे उसकी वैल्यू बेशक चेंज हो रही है, उसको हम फिर बाद में देख लेंगे। और इसी तरह ये नेगेटिव है तो ये भी क्या है? DC है, चूँकि ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो AC जो है वो सिर्फ फ्लो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से AC होता है, वैल्यू चेंज होने की वजह से वो AC नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक सर्किट डिज़ाइन करते हैं, और इस सर्किट में हम ये कुछ चीज़ें यहाँ पे लगाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाता हूँ ये वोल्टेज सोर्स, AC वोल्टेज सोर्स, ये इनपुट है, जहाँ पे हम एक AC सोर्स जो है यहाँ से इसको इनपुट देंगे। लेट्स से इनपुट है ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे हम डायोड लगाते हैं, ये एक डायोड है। इफ़ यू रिकॉल, ये जो बड़ा टर्मिनल होता है दिस इज़ पॉजिटिव, और ये जो होता है ये नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट पे हम एक रेजिस्टर लगाते हैं ये, और आउटपुट पे रेजिस्टर क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमें यहाँ से आउटपुट चाहिए होती है, ठीक है, तो वी आर एक्सट्रैक्टिंग आउटपुट हियर, यहाँ हमें आउटपुट चाहिए। इस रेजिस्टर के क्रॉस वायर्स होंगी, और हमें जो लेट से आप ये समझ लो कि ये वाला चार्जर है पूरा, ये वो पिन है जो हमने मेंस के अंदर लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है, और ये पूरा चार्जर है, और यहाँ से ये दो वायर्स जा रही हैं। असल में तो चार्जर की एक ही वायर होती है ना, लेकिन उस एक के अंदर फिर दो वायर्स होती हैं, ठीक है। तो ये वो वायर है जो हमने मोबाइल फ़ोन को जाके लगानी है। आप देखो क्या होगा इसमें, जब ये पहला पॉजिटिव पीक यहाँ पहुँचेगा तो आपका ये डायोड जो है ये पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को अलाउ करेगा कि आप पास कर जाओ। अच्छा, डायोड का अगर थोड़ा सा हम रिकॉल करें तो डायोड क्या होता है, ये इट अलाउज करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। मतलब इसके पॉजिटिव एंड से अगर पॉजिटिव आ रहा होगा तो ये अलाउ करेगा कि गुजर जाओ, इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर पॉजिटिव वाली साइड से नेगेटिव आ रहा होएगा तो वो उसको ब्लॉक कर लेगा, क्योंकि उस पे उसकी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी और वो रिवर्स बाइस हो जाएगा, एंड इट वुड नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट। समझ लो ये एग्जिट गेट की तरह है, एंट्री गेट की तरह है। जिस तरह आप किसी इवेंट पे जाएं तो अगर दो किस्म के एंट्री गेट्स हैं, एक मेल के लिए और एक फीमेल एंट्रेंस के लिए हैं, ठीक है, तो लेट्स से अगर मेल जो है वो मेल गेट से अंदर जाएंगे तो वो उनको जाने देंगे कि जाओ भाई, ठीक है, लेकिन अगर मेल जो है वो फीमेल गेट से अंदर जाना चाहेंगे तो वो उनको फ़ौरन रोक लेंगे कि भाई आप रुक जाओ, यू आर नॉट अलाउड, ऐसे ही है ना, तो वहाँ से उनको वापस भेज देंगे। तो सेम इज़ डायोड, डायोड का भी यही काम है कि अगर पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव साइड से तो इट विल अलाउ, तो इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बाइस डायोड, और इसको हम कहेंगे कंडक्टिंग स्टेट ऑफ डायोड। और अगर जो है वो नेगेटिव यहाँ से आ रहा है, इस तरफ से नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, नेगेटिव यहाँ से आ रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव में इंटर होगा तो वो कहेगा ठीक है भाई आप पास कर जाओ, इट विल बी इन कंडक्टिंग स्टेट।
लेकिन अगर नेगेटिव वाली साइड से पॉजिटिव पीक आ रहा है तो इट विल ब्लॉक इट। तो इसको हम कहेंगे रिवर्स बायस्ड डायोड, रिवर्स बायस्ड डायोड, एंड इट विल बी इन नॉन कंडक्टिंग स्टेट। और फिर वो उसका क्या करेगा, वो अब नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है तो क्या करेगा, क्या वो वापस चला जाएगा? नहीं, वो पॉजिटिव यहाँ से कोशिश करेगा कि डायोड के अंदर से गुजरे, लेकिन डायोड की रेजिस्टेंस बहुत हाई होगी तो उस पॉजिटिव की सारी एनर्जी वो डेसिपेट कर देगा हीट में, तो वहाँ पे पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा, उसकी सारी एनर्जी हीट में डेसिपेट हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव आ रहा होगा तो वो कंडक्टिंग बन जाएगा, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाएगी और नेगेटिव इसके अंदर से पास करके यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो डायोड की समझ आ गई क्या होता है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें आउटपुट क्या मिलेगी। इफ़ वी लुक अपॉन द आउटपुट, तो जब ये पॉजिटिव यहाँ पे पहुँचेगा तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ये कहेगा ठीक है भाई आप पास कर जाओ, पॉजिटिव पीक यहाँ से पास करके यहाँ आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो आपको आउटपुट पर पॉजिटिव मिल जाएगा, आप एक्सट्रैक्ट कर लोगे उसको। लेकिन जब नेगेटिव पहुँचेगा, लेट्स से नेगेटिव को मैं क्यू लिखता हूँ, तो अगर बेटा यहाँ नेगेटिव पहुँचता है इस जगह पे, फिर क्या होएगा? जब नेगेटिव यहाँ पहुँचेगा तो क्या होएगा? वो तो मतलब रिवर्स बाइस में चला जाएगा, पोलैरिटी अपोजिट हो गई, ये पॉजिटिव पोलैरिटी है, ये नेगेटिव है, इट विल नॉट अलाउ इट टू पास थ्रू इट। और फिर वो नेगेटिव किधर जाएगा? उसकी एनर्जी वो फिर भी कोशिश करेगा डायोड में से गुजरने की, एंड इन दैट प्रोसेस उस नेगेटिव की सारी एनर्जी डेसिपेट हो जाएगी, राइट? और फिर आपको एंड पे यहाँ क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा, नथिंग विल अपीयर ओवर हियर। फिर जब नेक्स्ट पॉजिटिव आएगा ये वाला, क्योंकि एसी में तो कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव नेगेटिव चलते रहते हैं ना, तो व्हेन द नेक्स्ट पॉजिटिव विल कम हियर इट विल अलाउ इट, और आपको नेक्स्ट पॉजिटिव यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी अगर एक इनपुट जो है और आउटपुट अगर मैं फाइनल बनाऊं, तो अगर इनपुट आपकी इस तरह की आ रही है, दिस इज योर इनपुट करंट और वोल्टेज, कुछ भी हो सकता है, तो आउटपुट फिर कैसे होएगी? करंट और वोल्टेज, आउटपुट आपकी होएगी पॉजिटिव, फिर नहीं आया, फिर पॉजिटिव, फिर नहीं, फिर पॉजिटिव, फिर नहीं, सो दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। अच्छा, अब ये जो आउटपुट वोल्टेज है, देयर इज अ स्पेशल नेम फॉर दिस, इसको कहते हैं रेक्टिफाइड आउटपुट। इसका नाम होता है रेक्टिफाइड आउटपुट, और ये ऑफ कोर्स डीसी है। हाउ वी कैन से दिस इज डीसी? बिकॉज this consists of only positive peaks, there is no negative peak over there, but it contains something, it contains fluctuations। मतलब इसमें ये वाली चीज़ और ये वाली जो चीज़ है इसको हम fluctuations कहेंगे, fluctuations। अब इस मतलब ये स्मूथ नहीं है, पहले इंक्रीज हो रही है मैक्सिमम, फिर डिक्रीज, फिर ज़ीरो, तो वी कैन रिमूव दीज फ्लक्चुएशंस। और उसको रिमूव करने के लिए, फ्लक्चुएशन को रिमूव करने के लिए हम एक कैपेसिटर यूज़ करते हैं, कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर कहाँ लगाते हैं? ये कैपेसिटर इस रेजिस्टर के साथ यहाँ पे लगा देते हैं, इधर ये आउटपुट रेजिस्टर के साथ एक कैपेसिटर लगा देते हैं। जब ये साथ कैपेसिटर लगाते हैं तो कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर की जॉब होती है स्मूथिंग, इसको कहते हैं स्मूथिंग जॉब, स्मूथ करना, कि ये जो यहाँ पे आपके पास रिपल्स या फ्लक्चुएशंस आ रही थी, कैपेसिटर विल ट्राई टू रिमूव दैट, लेकिन वो 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। 100% तो कोई चीज़ नहीं है ना, आइडियल तो कुछ भी नहीं है, तो ये, लेकिन फिर भी ये बहुत हद तक उसको स्मूथ कर देगा। अब कैसे स्मूथ करेगा ये हमने देखना है। हाउ मच टाइम डू वी हैव? देखो ज़रा, 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट में हम स्मूथिंग को देखते हैं। किसे? पैरेलल में ही लगाते हैं। पैरेलल में इसलिए लगाया है कि ताकि जो वोल्टेज यहाँ से आ रहे हैं ना, वो वोल्टेज दोनों को मिलें, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज रिमेन द सेम, सीरीज में होते तो वो डिवाइड हो जाते। ठीक है, ओके, सो लेट्स जस्ट डू द लास्ट थिंग विच इज स्मूथिंग, कि स्मूथिंग क्या होती है। स्मूथिंग, अच्छा बेटा, स्मूथिंग होता है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग रिपल्स फ्रॉम रेक्टिफाइड आउटपुट।
जो रेक्टिफाइड आउटपुट है उससे हमने क्या करना है, रिपल्स को रिमूव करना है, ठीक है। अब रिपल्स को हाउ विल बी रिमूविंग रिपल्स, तो उसके लिए देखो एक बहुत कैपेसिटर हमने लगाया है। अब यहाँ पे लेट्स से वी हैव द आउटपुट लाइक दिस, ये दिस इज ओवर रेक्टिफाइड आउटपुट, इट कैन बी करंट, इट कैन बी वोल्टेज, ठीक है। अब कैपेसिटर का देखना रोल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो जब ये आउटपुट पे वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और ये मैक्सिमम हो गए, तो ये जो वोल्टेज हैं ये नॉट ओनली रेजिस्टर के क्रॉस अपीयर हो रहे हैं बट ये कैपेसिटर को भी मिल रहे हैं, बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज सेम रहते हैं, ऐसे ही है ना। तो जब आप कैपेसिटर को वोल्टेज दे रहे हो तो कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होना शुरू हो जाएगा, कैपेसिटर विल स्टार्ट चार्जिंग, वो एनर्जी स्टोर करना शुरू कर देगा, राइट। तो यहां तक कैपेसिटर हुआ है चार्ज, सी फॉर चार्ज। अब देखो क्या होगा, अब जब आउटपुट वोल्टेज यहां से कम होना शुरू होंगे तो कैपेसिटर कहेगा देखो मेरे पास तो पीक वोल्टेज है भाई, पीक वोल्टेज कितने हैं, फॉर एग्जांपल 10 है। कैपेसिटर कहेगा भाई मेरे पास तो 10 वोल्ट हैं। अब जब वोल्टेज कम होना शुरू होंगे, यहाँ से डिक्रीज होंगे आउटपुट पे, तो वो सेंस कर लेगा, जब दो चीज़ें पैरेलल में होती हैं और एक के क्रॉस वोल्टेज कम होता है तो दूसरी चीज़ सेंस करती है कि भाई उधर वोल्टेज कम है, तो वो वहाँ से जो अपना जो स्टोर्ड चार्ज या करंट था या वोल्टेज वो आउटपुट पे देना शुरू कर देगा कैपेसिटर, ठीक है। जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन और पावर बैंक होता है कि आप अगर साथ लगा के रखते हो, अगर वो 100% चार्ज है तो पावर बैंक कोई एनर्जी नहीं देता ना, लेकिन जो ही आपका फ़ोन जो है उसकी चार्जिंग कम होती है, पावर बैंक साथ लगा होता है, वो फील कर लेता है कि यार इसके पास एनर्जी कम है, वो एकदम से दोबारा उसको फीड करना शुरू कर देता है, ऐसे ही है ना। तो यहाँ कैपेसिटर का यही काम है कि कैपेसिटर पहले हाफ में ये जो यहाँ तक पीक तक वोल्टेज गए हैं, कैपेसिटर ने अपने आप को चार्ज किया है, और जब वोल्टेज नीचे जा रहे हैं तो आप कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, वो अपनी एनर्जी आप रेजिस्टर को दे देगा। कहाँ से देगा, जो एनर्जी इसने स्टोर की है वो इस रेजिस्टर को देना शुरू कर देगा। तो आपके पास आउटपुट पे एक तो ये चल रहा है और एक कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी भी जाना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका ये वाली चीज़ यहाँ से यूँ आ जाएगी, ये आउटपुट पे हमें ये मिलेगी। तो आउटपुट पे ब्लू नहीं बल्कि ग्रीन मिल रही है, क्यों, ब्लू तब मिलती है अगर कैपेसिटर ना लगा होता, लेकिन अब कैपेसिटर की एनर्जी भी जो उसने पहले स्टोर की थी इधर, वो आपको आउटपुट पे दे रहा है, ठीक है। इसलिए आपकी ये लाइन यहां तक आ गई। तो ये जो लाइन है इसको हम डी कहते हैं, डिस्चार्जिंग टाइम होता है, और ये यहां से लेके यहां तक ये जो टाइम होता है इसको डिस्चार्ज टाइम ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। हाँ अभी मैं बताता हूँ, अभी तो एक पार्ट है ना। उसके बाद पीछे से ब्लू वेव तो आ ही रही है, यहाँ से तो आ रही है, जब यहाँ से आई और जब इससे वोल्टेज बढ़ना शुरू हुए तो कैपेसिटर ने देखा कि यार मेरी तो एनर्जी ख़त्म हो गई, अब जो एनर्जी आ रही है वो मुझसे ज़्यादा है, तो कैपेसिटर दोबारा चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और इस प्रोसेस में कैपेसिटर चार्ज होगा। जब पीक पे पहुँचेगा, जब ब्लू फिर कम होगी तो वो कहेगा भाई मेरे पास तो एनर्जी ज़्यादा है, तो वो दोबारा डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, और फिर वो इसी तरह चार्ज होगा और फिर इसी तरह डिस्चार्ज। तो जो आपके पास फाइनल फॉर्म बनेगी वो देखो कैसे बनेगी। फाइनल आपके पास ये यूं और फिर इस तरह, फिर यूं, फिर इस तरह, फिर यूं और फिर इस तरह। अब आप मुझे ये बताओ, इसको देखो, ये जो फाइनल आउटपुट है, और आप इसको देखो, इसको या इसको, तो व्हाट डू यू थिंक, कौन सी ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा स्मूथ कौन सी है? क्या ये जो पहले ब्लू वाली थी ये ज़्यादा स्मूथ है या ये वाली ज़्यादा स्मूथ है? नीचे वाली ज़्यादा स्मूथ है ना। अब इसको हम और ज़्यादा स्मूथ भी कर सकते हैं, इससे भी ज़्यादा, मतलब हम कहें नहीं ये लाइन नीचे ज़रा ऊपर होनी चाहिए थी, ये लाइन ऊपर का मतलब ये है कि ये लाइन लेट से हम कहें यहाँ जानी चाहिए भाई, ताकि और स्मूथ हो। समझ आ रही है बात की? तो और स्मूथ हम कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा स्मूथिंग कैसे होएगी? गुड, एक्स्ट्रा स्मूथिंग होएगी, हम बिगर कैपेसिटर लगाएंगे, बिगर वैल्यू कैपेसिटर लगाएंगे, या रेजिस्टर की वैल्यू भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एक्स्ट्रा स्मूथिंग तब होगी जब आप लार्जर कैपेसिटर यूज करें या आप बिगर रेजिस्टर यूज करें। दोनों चीजें एक साथ ही होती हैं, बिगर रेजिस्टर, लार्जर कैपेसिटर। तो उससे क्या होगा, आपके पास आउटपुट पर जो आउटपुट वोल्टेज मिलेंगे वो ज़्यादा स्मूथ होंगे, ठीक है।
क्वेश्चन इसका कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि वो आपको इस तरह की वेव देगा और आपको कहेगा बताओ भाई इस कैपेसिटर का डिस्चार्ज टाइम आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। और उसको निकाल के फिर हमने जो कैपेसिटर्स में वो इक्वेशन पढ़ी थी उसकी टाइम कांस्टेंट की, अगर आप लोगों को याद हो, x इज़ x नॉट e पावर माइनस टी ओवर आर सी, वो इक्वेशन भी यहाँ पे फिर यूज़ करवाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको ये जो बात मैं बता रहा हूँ ना, बस ये समझ आनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जाहिर है हम जब इसके अभी क्वेश्चंस करेंगे, मंडे को इसके और क्वेश्चंस करेंगे, तो फिर थोड़ी सी ये जो बात है ज़्यादा मज़ीद क्लियर जो है आप लोगों को होगी। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस तो यू मे आस्क नाउ। रेजिस्टर से कैसे सोल्व होगा? देखो जब कैपेसिटर बड़ा करते हैं तो हमें रेजिस्टर भी बड़ा करना पड़ता है साथ। आर सी टाइम कांस्टेंट होता है ना, टाइम कांस्टेंट इज आर सी। तो देखो आर सी का मतलब है कि आर एंड सी बोथ आर द फैक्टर्स ओवर देयर। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि कितने टाइम में वो 63% तक डिस्चार्ज होता है, तो हमें उस टाइम को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए टाइम इज आर सी होता है ना, तो इसका क्या मतलब है कि या आप आर बढ़ा दो या सी बढ़ा दो या दोनों बढ़ा दो, क्योंकि आपने तो टाइम बढ़ाना है ना, उसका डिस्चार्ज टाइम बढ़ाना है, ठीक है। टी इज आर सी होता है ना, टी इज आर सी। तो अब आप खुद देख लो कि टाइम किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? 2 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है ना, आर पे भी डिपेंड कर रहा है, सी पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट, ठीक है। मतलब ये मैथ्स शायद फिजिकली वो रीज़न हमें ना लग रही हो कि रेजिस्टर बढ़ाने से कैसे वो होगा, लेकिन जब कैपेसिटर के साथ पेयर्ड होगा ना, जब रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों पेयर्ड होंगे, फिर रेजिस्टेंस बढ़ाने से इफेक्ट होगा। खाली कैपेसिटर नहीं लगा हुआ रेजिस्टर बढ़ाते रहो, कुछ नहीं होगा। आपको कैपेसिटर के साथ अगर रेजिस्टर लगा हुआ है, फिर आप रेजिस्टर बढ़ाओगे तो उससे भी टाइम कांस्टेंट बढ़ेगा, ठीक है। चलें बेटा, ठीक है, दैट्स इनफ।